Tell us what happening on professional front. Professional front is going a little slow. I am exploring the web space and starting something new on web, which is a series. So, not many people want to really know about what are you doing on web. They are like TV ka batao, films ka batao. But yes, I think digital is the new future. So I am exploring my future and fingers crossed. So it's very early to say something about a project, but yes, I'm coming up with something on web and it's a series of my own. So yes, so crossing my fingers to that. जैसे आपने कहा था कि लोग पूछते हैं फिल्म में क्या कर रहे हैं और Yeah. टीवी पे क्या कर रहे हैं, लेकिन वाकई में डिजिटल प्लेटफॉर्म जब हम वेब सीरीज की बात कर रहे हैं तो आज कौन ऐसा है जो वेब सीरीज का हिस्सा नहीं? Everybody. And that is the future, right? The digital space is the future and we have to accept it sooner or later. जितनी जल्दी accept कर लें, it's better for all of us. So yeah. अच्छा, डिजिटल के साथ में एक बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती है और एक लिबर्टी भी मिल जाती है मेकर को. जैसे आपने वेब सीरीज का जिक्र किया, आई डोंट नो टू आस्क यू मच अबाउट इट. Yes. स्किन शो की बात कर लें या आप उसके इंटीमेट सीन्स की बात कर लीजिए, बहुत लिबर्टी हो जाती है क्योंकि देयर इज नो सेंसर इन इट. नहीं ऐसा है तो ज़रूर ऑफ कोर्स ऐसा है बट people like me, I do not like to watch something. I'm sorry, but I did not watch Mirzapur. A lot of people must have loved it. But मेरे लिए उसमें शायद ज़्यादा कुछ ऐसे सीन्स भी नहीं है. बट कल्चरल शॉक के कुछ ऐसे सीन्स थे जो डॉटर इन लॉ एंड फादर इन लॉ का जो भी लव एंगल दिखाया which is very disgusting for me to watch. And when you talk about skin show, people are exploiting digital platform as much as they can, but we also need to realize that आप जितना ज़्यादा कोई चीज़ exploit करोगे तो उस पर रोक तो लगेगी आज नहीं तो कल. सो बहुत जल्दी सेंसर स्टार्ट हो रहा है आई थिंक डिजिटल मीडिया पे भी, इनफैक्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर. एंड सिर्फ सेंसर ही नहीं, इनफैक्ट बहुत सी ऐसी चीज़ें भी स्टार्ट हो रही हैं लाइक अवार्ड्स, डिजिटल अवार्ड्स एंड ऑल अदर्स. So we should be very loyal to what is coming in future for us, and we not all of us are very loyal to it. So yeah, I treat it as a third screen, maybe a TV and digital and film. And बहुत जल्दी digital हमारी third भी नहीं, first या second screen रह जाएगा because TV is now all about digital. So it's that. Chad, you just mentioned about Mirzapur and you have Yeah. spoken about the relationship. I happened to speak about it, but I had no intentions to talk about it. But it was very disturbing for me. So I was like, it's crass. I don't want to watch that. Do you think it's a threat to Indian culture? Yes, it is. हम क्या दिखा रहे हैं, अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, अपनी आगे वाली जनरेशन को क्या दिखा रहे हैं. मैं जानती हूँ नॉर्मली गांव में इधर उधर छोटे शहरों में ऐसी चीज़ें होती हैं, बट और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो हम वो चीज़ को जब नेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर दिखाते हैं तो बहुत हद तक आप एक अपनी जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन, यूथ जो है, उसे मोटिवेट करते हैं कि देखो ये तो हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, सो इट्स नॉर्मल. एंड बहुत से जो यंग बच्चे हैं जिनका नाजुक दिमाग है वो एक्चुअली में इंस्पायर हो जाते हैं इन सब चीज़ों से. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट वी आर शोइंग, यू नो. क्या आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगी? As you said, you'll be very soon working on it. You already started. I have already started. We've already started building. I am also starting something on web, which is on an OTT. It's a series again as a maker and not just an actor. And मैं ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ जिससे यूथ को एक गलत मैसेज जाए, यू नो. जहाँ तक कि गाली गलौज है, यू नो, मारपीट है, वो सब ठीक है, बट एक सेंसिटिव इशू जहाँ पर आप रिलेशनशिप्स को इस तरह से मोल्ड करते हुए दिखा रहे हैं तो वो थोड़ा सा ऑफ बीट हो जाता है मेरे लिए. आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट. Chad, what is most difficult to be a producer, a maker, or be an actress? Being an actor is so good, but being a producer is damn difficult. And hats off to all those women, all those producers who are doing a deadly job
it is a vast game and it's a bigger ball game, which an actor would hardly understand. But I think अब मुझे बहुत बार लगता है कि मैं एक्टर ही ठीक थी. But yeah, so it is difficult, but be it, you can't really help it. Okay, apart from this, there's also Big Boss happening, as you discuss. We discuss Indian culture. हम अपनी सभ्यता की बात करते हैं, अपने कल्चर की, अपनी संस्कृति की बात करते हैं. बिग बॉस में भी बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए. बिग बॉस के बारे में क्या कहना चाहिए? तो मैंने बिग बॉस देखा नहीं है कभी. फर्स्ट सीजन देखा था, ओके, एंड अच्छा लगा मुझे. आई वॉज वेरी एक्साइटेड. सेकेंड सीजन तक बहुत एक्साइटमेंट थी. थर्ड आते आते वो वाज लाइक डन टिल डेथ. सो बिग बॉस मैं नहीं देखती हूँ. अगर कोई देख रहा होता है, टीवी में ऑन होता है, कोई ऑप्शन नहीं होता है तो बात अलग है. बट ऐसा मैंने तो बिग बॉस में ऐसा कुछ तो देखा नहीं है अभी तक जिससे हमारी कल्चर को इफेक्ट हो. It is about so many people living in together and doing the random stuff. But I don't think Big Boss में ऐसा कुछ भी है जिससे हमारे कल्चर को कोई भी कल्चर या इंडियन कल्चर या हमारी संस्कृति को कोई भी थ्रेट हो. I really don't think that. चाहत फिर भी इतने सारे लोग आते हैं वहाँ, बहुत लड़ाइयाँ, झगड़े, गाली गलौज दुनिया भर का होता है. इनफैक्ट लोग एक दूसरे का सामान भी फेंक देते हैं. कई बार हद भी पार हो जाती है. लोग बाग किसी की माता को, पिता को घसीट लेते हैं. जैसे विकास गुप्ता की माता जी का जिक्र कर दिया अर्शी ने. I don't know. So basically हाँ, ऐसा होता ही है. क्योंकि अगर आप इतने सारे लोगों को जो अलग अलग फील्ड में है, कोई डिज़ाइनर, कोई स्टाइलिस्ट, कोई एक्टर, कोई पॉलिटिशियन, उन सबको एक साथ लाओ तो एक दूसरे की इज्जत तो निकालेंगे वो लोग, आई थिंक. एंड हर कोई बहुत कल्चर एंड एथिक्स में बिलीव करने वाला, शांत स्वभाव का नहीं होता है. तो यही एक वजह है मैं बिग बॉस का पार्ट अब तक नहीं बनी हूँ. हर साल मुझे ऑफर होता है ना, आई वाज लाइक नहीं, नॉट माय कप ऑफ टी. बट it's a mental torture and a person like me, I can never be a part. मैं 2 दिन में भाग जाऊंगी. मैं नहीं, मेरे बस की बात नहीं है वो. तो क्या लगता है कौन लोग बिग बॉस में जाते हैं? सभी बिग बॉस में जाते हैं, सारे एक्टर्स. स्पेशली तो मेरे साथ 2 साल पहले ये हुआ था कि मेरी टीम ने मुझे बोला था चाहत अब तो तुम्हें बिग बॉस कर लेना चाहिए. नथिंग मच इज हैपनिंग इन योर करियर. एंड आई वाज लाइक ओके, आई चेंज देम. आई डू नॉट वांट द टीम हु डजंट बिलीव इन मी. ज़्यादातर बिग बॉस पे वो एक्टर्स को अप्रोच करते हैं जिनको ये लगता है, उनको ये लगता है कि ठीक है कर लेंगे, इतनी डेट्स दे देंगे एक साथ, जिनके करियर में बहुत ज़्यादा हलचल नहीं होती है, जिनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता है करने के लिए, तो वो लोग बिग बॉस में दे आर अ पार्ट ऑफ इट. एंड जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, हु वांट्स टू लाइक बी देयर एंड डू इट, हु वांट्स फेम, डेफिनेटली हु वांट्स टू मेक देयर मार्क, दे आर इन बिग बॉस. तो ऐसी दोनों चीज़ें मुझ में नहीं है. मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ. एंड आई डोंट वांट ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि मेरा करियर डूब रहा है तो मुझे बिग बॉस कर लेना चाहिए. तो जो एक्टर्स के पास ज़्यादा कुछ नहीं होता है करने को, दे यूजली गो टू बिग बॉस. एंड 90% आई वुड से. एंड या सो इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर न्यू कमर्स आते हैं एंड फेम एंड कैश करते हैं, जहाँ पर थोड़ा बहुत काम किए हुए लोग आते हैं, फेम एंड कैश करते हैं. एंड या सो बेसिकली आपको फेमस होना है तो बिग बॉस चले जाओ, जस्ट सिंपल एज दैट. क्या वो सेकंड लाइफ मिलती है? जैसे आपने कहा कि बहुत से होते हैं, मतलब प्रोफेशनली जितना काम मिलना चाहिए या काफी वक्त से हैं, लोग उन्हें हल्के हल्के भूलने लगे हैं और फिर वो बिग बॉस की तरफ हाँ होता भी है. इनफैक्ट मुझे भी बहुत से एक्टर्स ने बोला है कि यार अब समझ में नहीं आ रहा है, बिग बॉस कर लेते हैं, थोड़े बहुत शोज तो मिल ही जाएंगे, इवेंट्स मिल जाएंगे. एंड आई एम लाइक ओके व्हाट नेक्स्ट. सो 1 साल का फेम तो रहता ही है डेफिनेटली, और जो जीत जाता है उसके लिए शायद 1.5 साल का फेम रहता होगा. बट 1 आध साल तक आपको काम मिलता भी है. बट देन डेफिनेटली पीपल हैव अ शॉर्ट मेमोरी, राइट? सो एक बिग बॉस को आप कब तक खींच सकते हैं? तो या काम मिलता है उसके बाद. बट इसी के लिए तो एक्टर्स जाते हैं कि लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, करियर में कुछ नहीं हो रहा है, चलो भाई बिग बॉस कर लेते हैं. चाहत मैं फिर इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट, लेकिन फिर भी जानना चाहूंगा कुछ ये तो बताइए कि कॉमेडी होगा, रोमांटिक होगा, जिस वेब सीरीज पे आप काम कर रहे हैं. ओके, सो आई एम मेकिंग अ वेब शो, नॉट अ वेब बट
okay, I'll give you a little insight about it. I'm making something for YouTube. We have a channel, so it's going to be out and out comedy, and it's based on Three Girls, which is a chick flick comedy, but complete comedy. So it's going to be a laughter ride, and yeah. So I think we might go on floor from ending of January, somewhere around that. And the thing I'm doing on web is on MX, and it'll be out soon. I've already announced it. So it's again a controversial series called Vijay Mallya, and that will be soon going on floor. So yes, fingers crossed. Why Vijay Mallya? Because we got the rights of the person by the book rights and all of that. So, and also the story is very, controversial. People want to watch it. People want to see what was the reality. So it's like hotcake. It sells. Also, not just because that people like to watch it. So. What would be your role in the series? No, I am making it. I am not acting in it. You're producing it. Who will be directing it? Too soon to talk about so many integrities, but yes, we have a name on board already. I would not want to announce his name without his permission, but yes, it's going to be like quite good, I think. The very first project, and that too very controversial. The project chose you, or you chose? No, the project chose me. I did not choose it. The second one is not controversial. It is it's a fun ride. It's chick flick thing, and it's about girls, and sweet hai, funny hai, controversial bilkul nahi hai. In that, I'm making it, and I'm also going to be a part of it as an actor. When will be, as you said, you'll be very soon. You'll be going on the floor for Vijay Mallya. Yeah. The paperwork is done. Everything is all set. Yeah. Yes. Fair enough. There'll be a disclaimer when comes on air. So that is disclaimer. Yes, I know I'm talking about a very, very controversial project and all of that, blah blah blah. But it is a little more soon to talk about that. I have just given the insights about the name, and the OTT is more than enough, I think. So I don't want to get into any trouble with my people out there. So it's better if I keep hush about it. The journey from here to London of Vijay Mallya or other No, not there. We just capturing here in India. Thank you so much, Amit.